जब समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत सी चीज़ें निकली थीं, जैसे अमृत, विष, सुरा, कल्पवृक्ष और भी बहुत कुछ, जैसा हमने सुना और पढ़ा है। इस श्रृंखला का नाम मंथन हमने इसीलिए रखा है कि हम शिक्षा के अथाह सागर में ज्ञान, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, बच्चों की प्रकृति, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक जैसे मुद्दों पर अनेक सवाल उठा रहे हैं, इसी उद्देश्य के साथ कि हमें नई दिशाएं मिलती रहें। आधे घंटे के इस कार्यक्रम को हमने 4 कहानियों के रूप में बांटा है। पहली कहानी है केरल के मछुआरों की। Hunters of the sea. That is the way fishermen sometimes call themselves. It correctly describes their work, their knowledge of the sea and the fishes in it. Like hunters everywhere, fishermen maintain a delicate balance with nature while fishing. The traditional methods have lasted for years because the fisher folk only removed the fish from the sea. The breeding areas at the sea bottom were left untouched. The arrival of trawlers which dragged their nets at the sea bottom destroyed the fish breeding areas, leading to a fall in the catch. How did the small fishermen survive and rebuild the catch? We went to a village called Valiyathura in Kerala and met Robert. In 1970, 31 fathom depth of the sea, there was one Greek ship sank, you know. Greek enna kappalalle nammal ee pandu mungi ennu parayunnu. That became a good accidental reef. They are getting so many good varieties of fish from that reef. This discovery led to a number of attempts at creating sea bottom conditions like at the shipwreck. Various combinations of materials were tried out till they arrived at a structure like this. They collected materials such as used tires, tree stumps, palm leaves, and put them inside the concrete structure. The artificial reef was then carried by the fishermen on their catamaran and dumped at a particular place in the sea. Organic matter like leaves decay to release nutrients which act as food for fish. The triangularly placed cement slabs allow small fishes to enter and thus escape from their predators. After 2 weeks, they found plenty of fish around the reef. This year, about 70 such triangles were submerged to make an artificial reef. The reef is big enough for 60 fishermen to fish in a day. Last year, they constructed an artificial reef. They spent 15,000 rupees. But the same year, they got more than 1 lakh rupees fishes from that artificial reef. You know? Using their own innovations in reef making, the fisherfolk of this region are today doing more than ensuring a livelihood for themselves. They are actively engaged in regenerating and sustaining a ravaged marine habitat. तो देखा आपने, मछुआरों ने अपने ही अनुभव को जोड़कर उपयोगी ज्ञान की रचना की। अब सवाल ये है कि ज्ञान क्या है? कौन ज्ञान की रचना कर सकता है? क्या हम सभी ज्ञान की रचना कर सकते हैं? क्या एक शिशु ज्ञान रचता है? क्या हम सभी में ज्ञान रचने की जन्म से ही क्षमता होती है?
से कुछ ये सोच रहे होंगे कि ये बच्चे ज्ञान कैसे रच सकते हैं। ये तो अभी स्कूल नहीं गए, किताबें नहीं पढ़ी, किसी शिक्षिका ने नहीं पढ़ाया, फिर कैसे? पर आपने स्वयं जाना होगा कि पैदा होते ही बच्चे दुनिया को पहचानना शुरू कर देते हैं। माँ का स्पर्श, माँ की आवाज, वे माँ को बता भी देते हैं उन्हें क्या चाहिए, बेशक रोकर ही। माँ भी समझने लगती है। ये इन बच्चों को किसी ने नहीं सिखाया। इन्होंने इस ज्ञान का सृजन, रचना या कंस्ट्रक्शन स्वयं किया। छोटे से लेकर बड़े सभी बच्चों को चीजों को छूना, उनके साथ खेलना और उनसे अर्थ निकालना बहुत अच्छा लगता है। वे हमेशा ही रोमांचक कार्यों और खोजबीन में लगे रहते हैं। खिलौने इनके लिए महज खिलौने नहीं हैं। उनको देखना, छूना, चाटना, खोलना, तोड़ना, ये सब बचपन से ही शुरू हो जाता है। ये खिलौने भी कुछ जानने का, खोजने का, नए आविष्कार का साधन है। बड़ों को अक्सर लगता है कि बच्चे इन खिलौनों से केवल खेल रहे हैं या उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे इनसे सिर्फ खेलते या इन्हें तोड़ते नहीं हैं, इनमें कुछ ढूंढते हैं जो इन्हें पता ना हो। यही नहीं, इसे कई एक चीजों के साथ जोड़ने की कोशिश भी करते हैं। असल में बच्चे शुरू से ही वैज्ञानिक होते हैं। हम सब अपने आसपास बच्चों को छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करते, उनके बारे में सवाल पूछते, नई नई चीजें बनाते हुए पाते हैं। ये बच्चों का अपना प्राकृतिक स्वभाव है। देखा नहीं, समझा। क्या समझा? मैंने समझा कि एक एक करने से सब कुछ ठीक रहता है, पढ़ाई भी और सब कुछ। वाह भाई वाह। तभी तो स्कूल में कदम रखने से पहले ही इनके शब्द भंडार में 4-5 हजार शब्द तक शामिल हो जाते हैं। सही व्याकरण के साथ पूरे पूरे वाक्यों को बोल लेना, कविताएं गढ़ लेना, भाषा के खेल खेल लेना, ढेर सारी चीजों, जानवरों और पक्षियों के नाम मालूम होना, इतना सब सीख लेते हैं ये अपने आसपास से। क्या अभी भी हम कह सकते हैं ये बच्चे ज्ञान की रचना स्वयं नहीं करते? जितनी चीजें बच्चा छोटी उम्र में घर में सीखता है जी। जितने कॉन्सेप्ट सीखता है, अब जब स्कूल में आए उसको आप कहेंगे कि वो तो है ही नहीं, उसको नकार दें, तो आप इतनी बड़ी जो गहरी सीखने की जिंदगी है, पहले 4-5 साल जिसमें जिंदगी में आधा जो सीखना है आप उसी वक्त सीखते हैं, उसको आप नकार देते हैं, उसके साथ ताल्लुक ही नहीं बनाते, बड़ा जुल्म करते हैं आप। यदि देखा जाए तो प्रकृति ने पशु पक्षियों को भी ये क्षमता दी है कि वो अपने लिए ज्ञान का सृजन कर सकें। सच भी यही है कि ज्ञान अनुभवों का भंडार है जिसके द्वारा हम संसार को समझ पाते हैं। चिड़िया अपना घोंसला स्वयं बनाती है, अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढकर लाती है। पशु भी अपना खाना और पानी तलाश लेते हैं। यही नहीं, पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। अब सोचें कि वृक्ष में कैसी अद्भुत क्षमता होती है कि वो अपने को प्रकृति और मौसम के अनुसार कितने रूपों में प्रकट करता है और हम सबको अनोखी संपदा देता है। तीसरी कहानी है सेमल के पेड़ की। क्या आपने कभी ये पेड़ देखा है? In the early morning of spring, there is a nip in the air. As the sun rises, the birds and the bees converge on the bright crimson flowers of this tree. Tall and majestic is the tree of Semal, silk cotton or Bombax ceiba.
Few trees can compare with its beauty and brilliance. Found in India, Burma and Malaysia, it grows along rivers or in humid conditions. The bark of Samal tree is smooth and greyish. The branches arrange themselves in a spiral form. The stem is covered with sharp conical prickles which disappear as the tree ages and grows tall. The base of old tree develop buttresses at the bottom to provide additional strength for it to stand. The 5, 6 or 7 leaflets at the tip of a common stalk are arranged like the fingers of a delicate hand. Soon after the leaves are shed in January and February, the flowers appear in all their glory. Some birds come for the nectar, some in search of drowned insects which lie at the bottom of the flower cups. Each flower has large number of stamens which form groups to encircle the pistil. After the birds and squirrels have feasted themselves, the flowers fall to the ground, making it look like a battlefield. The big Indian bee tends to construct huge comb on the branches of a samal tree. These are colonies of bees filled with honey, wax and pollen. If you disturb this colony, you surely would have to run for your life. The summer comes and the trees get covered with elliptic-shaped fruits. They burst open to liberate masses of fine floss that descend to the ground carrying deep brown seed. This unforgettable sight lasts for only a few days when the entire landscape around the tree has a snow-covered appearance. This cotton from samal tree is not suitable for spinning, weaving and making cloth. It's therefore used for stuffing mattresses, pillows and jackets for extreme cold. Samal wood is very soft and is used for making toys. The seeds are a nourishing food for cattle and the bark is used in medicine by Ayurvedic doctors. Murias, a Madhya Pradesh tribe, plant the samal tree whenever they discover a new village site, because not only it is stately, beautiful and benevolent, it is also the most exuberant and friendly of the Indian trees. जब हम स्कूलों की बात करते हैं तो हमारे जहन में तमाम विषयों के नाम घूमने लगते हैं। विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, भाषा। किसी को कोई विषय पसंद है तो किसी को कोई और। विषय की विषय वस्तु बनाई कैसे जाए, पढ़ाई कैसे जाए, ये पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें बनाने वालों के लिए हमेशा से ही पहेली बनी रही है। जब इतिहास की बात आती है तो बहुत से प्रश्न उठने लगते हैं। इतिहास की रचना कैसे होती होगी? चलिए इस पर देखते हैं एक कहानी। You are a physicist, not a historian, but I'd just like to ask you, how do you think history is constructed? I think if we just look back to the last century, then I think creating history shouldn't be a big problem, because because documenting by many people of the same event had already started. But if we start going back on the timeline, then I guess it should be more and more difficult to reconstruct history, because documentation of the same event wasn't done by so many people. Yes, to an extent that, you know, maybe that there were times when they were seeing what's happening currently, and there's a desire for each one as a historian, probably, you know, there's this inquisitiveness to know what was it in the past, and probably they find something which is as an evidence which can be used to trace back what had happened. Like, so that's how I think they generally would do it. प्राप्त जो डाटा हैं, मटेरियल्स हैं, उपलब्ध साक्ष्य भी वो बहुत तरह के हो सकते हैं, तो उनको उनका गहन अध्ययन करके उसके बाद उस पर गहन चिंतन करके फिर उसके बाद लिखते हैं मेरे ख्याल से। ये तो कुछ जैसे
प्राचीन अवशेष हुए, जैसे किसी बिल्डिंग के हुए, उस तरह हड्डियों के हुए, ऐसे ऐसे चीज़ों का फिर उसको वैज्ञानिक पद्धति से कि उसका शोध करते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है। I still feel though I am from physics, so I feel history is scientific also because it is based on certain evidence. सामान्य आदमी जैसे हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतिहास कैसे रचा जाता है। इतिहासकार तरह तरह के स्रोतों से इतिहास के तथ्य निकालते हैं। इन तथ्यों के आधार पर घटनाओं तथा प्रक्रियाओं को फिर से रचने का प्रयास करते हैं। वे अपने परिप्रेक्ष्य के मुताबिक इन प्रक्रियाओं को तर्कों में पेश करते हैं और इस तरह से इतिहास की रचना होती है। परंतु बच्चों के लिए उनकी जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए इतिहास लिखना एक अलग तरह की प्रतिभा की मांग करता है। इतिहास को मैं साहित्य और विज्ञान का मिश्रण समझती हूँ। साहित्य में जैसे कहानी भी होती है तो इतिहास में कहानियाँ भी होती हैं, बड़ी रोचक लगती हैं पढ़ने में। और विज्ञान में फैक्ट्स होते हैं, इतिहास में भी फैक्ट्स होते हैं। इतिहासकार जब इतिहास रचता है तो मुझे लगता है पहले किताबें पढ़ता है और फिर उनके बेस पर उन जगहों पर जाकर खोज करता है, उन सबको मिलाकर ही इतिहास बनता है। क्योंकि इतिहास में अगर कहानी नहीं होगी तो पढ़ने में उसको मज़ा नहीं आएगा, और उसका अगर फैक्ट्स उसमें नहीं होंगे तो इतिहास नहीं रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों को मिलाकर ही इतिहास रचा जाता होगा इतिहासकार के द्वारा। बच्चों को हम इतिहास में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति के बारे में बताते हैं तो वहाँ खुदाई से जो भी उनको जो चीज़ें मिली हैं, जैसे कैसे उनका रहन सहन था, कैसे उनकी जो है वहाँ घर होते थे, कैसे उनकी नालियाँ होती थी, क्या उनके खेल के मनोरंजन के साधन होते थे, उससे वो लेकर के किताबों में बच्चों के लिए काफ़ी कुछ जो है जोड़ देते हैं। और जब तक प्रमाण हमारे पास में नहीं होंगे तब तक हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये एक इतिहास में ऐसा कुछ हुआ था, या कुछ हमारे पास में ऐसे पुराने रिकॉर्ड्स हों, कुछ ऐसे चीज़ें हों, दस्तावेज हो, जिनके आधार पे हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ भी वास्तव में ऐसी चीज़ हुई थी। पर वो भी प्रमाण ऐसा नहीं है कि एक ही सोर्स से मिले हों, वो प्रमाण कम से कम मुझे लगता है कि 8-10 ऐसे स्रोत होने चाहिए जिसमें कि आपको लगता है कि वास्तव में ये हुआ था और ऐसा ही हुआ था। तो इन साक्ष्यों के ज़रिए बच्चों को स्वयं उन स्रोतों की जांच पड़ताल करने और उनका मूल्यांकन करके एक अपनी समझ विकसित करने का मौका दिया गया है। The children's natural ability to learn and the importance of linking classroom experiences with life outside, and also the stress on reducing the load of the curriculum. इसके लिए आवश्यक है ये समझ कि विभिन्न स्कूली अवस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चे अपनी उम्र और अनुभव के आधार पर कितना और क्या आनंद के साथ पढ़ और समझ सकते हैं। इन दो मुख्य मुद्दों पर निरंतर चिंतन की जरूरत है कि इतिहास में हम रुचि कैसे पैदा करें और कैसे इसमें सूचनाओं का बोझ और रटना कम करें। History is supposed to be one of the most boring subject for me, and it continue to be till today. Right. But as far as we have learned history, history is supposed to be one subject where we have to memorize certain facts, certain chronology, and certain difficult names. So it was really, burden for us to learn history that way. And the teacher never tell us something which we can relate history with today's world. So there we find lots of gap between what we have learned history and what is happening exactly today. Right. And suppose we were to tell children how history is constructed, do you think that would make things more interesting? Yeah, I feel that if we can tell children how history has to be constructed and how it has evolved with time,
and how it is reflected in today's life, I feel that children will understand more and they will be able to relate what they have learned histories with today's life, and they will be able to appreciate the past life, the past happenings, the past civilization in a better way than we did today. तो ये कहना कि इतिहास को रोमांचक और सृजनशील बनाया जाना चाहिए एक बात है, और इसे अमल में लाना ताकि बच्चे इसकी रोमांचकता महसूस करें दूसरी। अमृता प्रीतम हमारे देश की एक अनमोल रत्न, जिन्होंने कथा, कहानी, कविता और चित्रकारी के क्षेत्र में एक अद्भुत मिसाल कायम की। उनके ही शब्दों में सुनते हैं उनके अनुभवों का निचोड़। मेरी ज़िंदगी 3 हिस्सों में बंटी हुई है। तलब, सबसे पहले एक प्यास, जिज्ञासा जानने की, दूसरी इश्क, मोहब्बत, दोस्ती, और जिसमें कोई नेगेटिविटी शामिल नहीं होती, और तीसरा मुकाम आता है मार्फत का, जिसमें इंसान अपने को खोजता हुआ, जैसे शाह हुसैन की लाइन है, फ़कीरा आपे अल्लाह हो, उस मुकाम तक पहुंचना, उस कायनाती हुस्न तक पहुंचना जिसमें कोई जाति पाति मज़हब कुछ बात सब छूट जाते हैं। ये है मंथन, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। नई सोच, नए मुद्दे और नया दृष्टिकोण, इसमें आप भी शामिल हैं और मिलकर ढूंढेंगे नए रास्ते, नई दिशाएं।